Very good morning, dear students. Today we are starting our lesson number 2 of history, as we have finished lesson number 1 earlier of history. So, name of the lesson is From Trade to Territory. Okay. So, as from the name of the lesson, we are clear that the lesson is saying that how from trade the position of territory was attained. मतलब ट्रेड करते करते कह रहे कैसे टेरिटरी वाली पोजीशन जो है कैप्चर कर ली गई, किसके थ्रू? ब्रिटिशर्स के थ्रू. नाउ I will give you a brief introduction about the topics we will study in this lesson. So you will get out overview about what are the things we will study in this lesson. Now, starting from the beginning, India before the coming of British. We will see a brief introduction of the condition of India before the coming of British in the country. Okay. After that, we will see how the Britishers became the rulers from the traders. Initially, we all know that Britishers came to India for the purpose of trading, and how after some time from traders to they took the position of rulers. These things also we will see in this lesson. After that, we will also see the Battle of Plassey and Battle of Buxar. We will see what were the main reasons for these battles and who were the main key players during these battles. Then we will see how the company is used for the East India Company or Britishers expanded their rule. Okay, as we have studied that in the last few lines, that from traders they became the rulers. Now, how they expanded their power, their powers and policies and rule, this we will see. Then we'll also see about subsidiary alliance system, claim to paramountcy system, and doctrine of lapse. These systems we will see, and then we will see war with Tipu Sultan and Marathas. Tipu Sultan was a great leader and he fought with the East India Company. This we will see, and we will also see the war of Marathas with the East India Company. Okay, these things we will see. After that, we will see setting up of new administration. Now Britishers was having the complete powers. How the new administration system was run by the Britishers, these things we will see, and at the end we will see the whole conclusion of the chapter. Okay, hope now you are clear with what are the things we will be going through in this lesson. So basically today I hope so we will cover the starting two topics, means we will see about the East India Company, then we will see how Britishers became the ruler, and more what we can discuss in today's videos is about Battle of Plassey and Battle of Buxar. Okay, other topics we will see in the next video. Now in this chapter what we are going to study about East India Company. Now it is written as the head of the topic, East India Company comes from East. Now it should be very clear to you why it is written. For this I am showing you, suppose when you will see the world map, suppose India is here, okay, and this is Britain, suppose, okay. So this is East India Company and they used to come here, okay. When you will see in the world map, the position of India is towards the east side. So that's why it is written East India Company comes towards east. Okay. Hope so this is clear to you. Now what happens after the Mughal rule in the country, जब मुगल्स का रूल था कंट्री में, उसके बाद में क्या हुआ, मुगल्स की पावर डिक्लाइन होने लगी थी and the ट्रेडिंग कंपनीज वर अराइविंग एट दैट टाइम. धीरे धीरे जब मुगल्स की पावर डिक्लाइन होने लगी तो बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में आती थी, किसके लिए? ट्रेड करने के लिए. ट्रेडिंग कंपनीज कौन कौन सी? जैसे कि
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, उसके अलावा पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड डच कंपनीज वर आल्सो देयर. दीज वर नोन एज अदर यूरोपियन पावर्स. So these all companies were coming in India for the purpose of trading. And we know that after the Mughals, English East India Company or Britishers attained the power here, and how they attained their power, these things also we will see. Now what happens now in 1600, this East India Company acquired charter from Queen Elizabeth. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ 1600 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर्ड कर लिया था किससे, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से. अब इस चार्टर के अकॉर्डिंग क्या था, क्योंकि ब्रिटेन क्या था, काफी बड़ा था. इस चार्टर के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहां की एक कंपनी, उसको एक सोल राइट, सोल मतलब अकेला अधिकार मिल गया था कि वो क्या करेगा, ईस्ट में जाकर ट्रेड करेगा, या कह लो इंडिया में आकर ट्रेड करेंगे. और कोई ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी नहीं आएगी, सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही परमिशन मिला चार्टर के थ्रू कि आप जाकर वहां पर ट्रेड कर सकते हैं. ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज अगर ब्रिटेन से और ज़्यादा कंपनीज आती तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया को उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसीलिए चार्टर के थ्रू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एलिजाबेथ फर्स्ट के थ्रू क्या मिल गया, सोल राइट मिल गया टू ट्रेड विद ईस्ट. एंड by this trade they also got the objective of mercantile objective के थ्रू इन्होंने क्या किया, बहुत सारा प्रॉफिट भी अर्न किया. अब मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव क्या था, मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव था कि एक जगह से गुड्स परचेज किए, ओके, एंड दूसरी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उनको सेल आउट कर दिया, और जो प्रॉफिट बचा उसको उन्होंने अपने पास रख लिया. दिस वॉज द मर्केंटाइल ऑब्जेक्टिव. तो उनको सोल राइट मिल गया टू ट्रेड विद द ईस्ट एंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मर्केंटाइल. सो वॉट एवर थिंग्स वी विल परचेज फ्रॉम वन प्लेस, दैट इज फ्रॉम इंडिया, एंड दे विल सेल टू द अदर कंट्रीज where those goods were having huge demand, and the margin or profit they will keep with them. So this was the story of charter issued by Queen Elizabeth to English East India Company. Now there was excluded competition from the other companies of Britain. अब दिक्कत क्या थी कि ब्रिटेन से तो उनको सोल राइट मिल गया क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू, यानी ब्रिटेन से तो कोई दूसरी कंपनी वहां पर ट्रेड करने आएगी नहीं ईस्ट में, इंडिया में. लेकिन जो एक्सटर्नल कंपटीशन था, एक्सटर्नल कंप्लीट मतलब दूसरे कंट्रीज से तो दूसरी कंपनीज आ सकती है ना, जैसे ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी है, वैसे अलग अलग कंपनीज पूरे अलग दूसरे कंट्रीज में हो सकती है. तो इंटरनल जो कंपटीशन था दैट वाज एक्सक्लूडेड, बट एक्सटर्नल कंपटीशन वाज स्टिल देयर. एंड दीज ब्रिटिशर्स मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय द सिस्टम ऑफ मर्केंटाइल ट्रांसफर ऑफ गुड्स. And external competition was there in the form of European powers, like there were Portuguese companies were there were Dutch companies were there, French companies there. Suppose हमने बात की थी यहाँ पर ब्रिटेन है तो इसके पास यहाँ पर डच है, ओके, फ्रांस है, ओके, and the Portuguese were there. So these companies, these European companies were also there. Means that for English East India Company, internal competition was ended. They have made profits, but external competition was still there. After that we will see this type of competition created the hindrance in the trade, or we can say problems in the trade. Problems were created due to the competition. अब इतना जब competition होने लगा अदर पोर्चुगीज, फ्रेंच एंड डच कंपनीज की वजह से, तो दिक्कत सभी को आने लगी ट्रेड में. दिक्कत क्या आने लगी, बिकॉज ऑल कंपनीज वर इंटरेस्टेड टू बाय द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. सभी जो कंपनीज थी उनको जो सेम तरह की चीजें चाहिए थी, तो इसीलिए उनमें क्या होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा. जैसे हम देखें तो सभी को यहाँ से इंडिया से कॉटन चाहिए था, सिल्क चाहिए था, पीपर काली मिर्ची जो होती है वो, क्लोव्स लौंग वगैरह जो होती है,
कार्डमम, इलायची। बेसिकली स्पाइसेस के लिए वो लोग, जो ये कंपनीज थी, यूरोपियन कंपनीज, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, बिकॉज यूरोप में एक बहुत बड़ा मार्केट था स्पाइसेस का, डिमांड थी वहाँ पर, और वहाँ पर यहाँ से एक तरह से ले जाया जाता था उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसके क्या होंगे, प्राइजेस इंक्रीज करेंगे। ओके, तो जैसे यूरोप में इन सभी चीज़ों की, कॉटन, सिल्क, पीपर, क्लोव्स, कार्डेमम, इन सभी चीज़ों की क्या थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनके प्राइजेस इंक्रीज होंगे। अब जो ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके प्रॉफिट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, क्योंकि क्या होगा कि सभी लोग क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। भाई बात तो ये होगी ना, इंडिया के लोगों को अच्छा अमाउंट मिलेगा और प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है वही जाके सेल कर देंगी, ठीक है, तो उनका जो सोल राइट और इंडिविजुअल सेलिंग वाली जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाएगी, तो धीरे धीरे उनके क्या होंगे, प्रॉफिट डिक्लाइन होंगे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, बिकॉज यूरोपियन कंपनीज आर ऑल्सो देयर, पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच, ये लोग भी जाके वहाँ पे बेचेंगे, है ना, तो जो मुनाफा है वो अकेला जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था उनका अकेला नहीं रह पाएगा, ओके, जैसे कि पहले होता था, ड्यू टू द अदर यूरोपियन कंपनीज, बिकॉज दे हैव आल्सो एंटर्ड इन द सेम थिंग। Now what happened? The only solution अब left to the English East India Company। अब English East India Company के पास जो अकेला एक सॉल्यूशन बचा एक तरह से, वो क्या था कि वो क्या करते, सारी जो यूरोपियन कंपनीज हैं, यूरोपियन पावर्स हैं, जैसे कि पोर्चुगीज कंपनी, फ्रेंच कंपनीज, डच कंपनीज, इनको क्या कर दे, एलिमिनेट कर दे, और खुद अकेले अकेले बिजनेस को या ट्रेड को फ्लरिश करें, यानी खुद एंजॉय करें बस ट्रेड, बाकी कंपनीज को हटा दे इंडिया से। तो क्या करते थे ये, इन सभी कंपनीज के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, और ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे को क्या आपस में इनमें बैटल्स होने लगे, क्या करने के लिए, पूरा मार्केट खुद कैप्चर करने के लिए। तो ये क्या करते थे कि 17th और 18th सेंचुरी के टाइम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग कंपनीज विच वर ट्रेडिंग इन इंडिया लाइक पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच एंड ब्रिटेन, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनीज। तो ये लोग क्या करते थे 17th और 18th सेंचुरी में एक दूसरे के जो शिप्स होते थे उनको क्या कर देते थे, डुबो दिया करते थे, ओके, या फिर रास्ते जाम कर देते थे, ब्लॉक कर देते थे, या फिर क्या करते थे, जो राइवल शिप्स हैं, एक दूसरे के जो दुश्मन कंपनीज हैं या उनके शिप्स हैं, उनको क्या कर देते थे, प्रिवेंट करते थे, या फिर उनको गुड्स वहां से प्रॉपरली सही तरीके से ले जाने नहीं दिया करते थे, ओके। और उस टाइम पे ये चीज बहुत पॉपुलर हो गई कि दोज आर हैविंग प्रॉपर आर्म्स एंड वेपन्स, दे कैन ओनली ट्रेड प्रॉपरली, क्योंकि वो क्या कर सकते थे, अपने गुड्स को प्रॉपरली बचा सकते थे एनिमीज से, ओके। एंड धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, अपने ट्रेडिंग पोस्ट को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, किससे, फोर्टिफिकेशन से। और फोर्टिफिकेशन अगर आपको ये पता हो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, जैसे कोई भी फोर्ट है उसके तरफ सारे तरफ बाउंड्री होती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनिमीज, दिस वाज फोर्टिफिकेशन। तो ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, किलाबंदी करने लगे, मतलब उन्होंने यहाँ पे जो उनको इंडिया से सामान ले जाना है यहाँ पे रखा और उसको फोर्टिफाई कर दिया। अब धीरे धीरे जब फोर्ट्स में ये चीज़ होने लगी, फोर्टिफिकेशन होने लगी, किले में इस तरह से उन्होंने अपना सामान रखकर उसका प्रोटेक्शन करने लगे, तो जो लोकल रूलर्स थे वहाँ के, ठीक है, जो वहाँ के राजा वगैरह थे, नवाब वगैरह थे, उनको क्या होने लगी, दिक्कतें होने लगी, बिकॉज दे वर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर्स। तो इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए किसमें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में और द लोकल रूलर्स में। यहीं से सबसे पहले स्टार्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलर्स एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल सी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेंस ट्रेड इन बंगाल। कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से ट्रेड स्टार्ट करती है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे ये इंडिया है, ये ब्रिटेन है, तो यहाँ पर आकर शिप्स रुकती थी, यहाँ से सामान को डाला जाता था शिप्स में, एंड दीज यूज्ड टू अगेन गो टू द यूरोपियन एरियाज फॉर ट्रेडिंग, ओके। तो सबसे पहले ट्रेड यहीं से स्टार्ट हो रहा है बंगाल में, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।